Today we are going to discuss a new topic, that is analyzing the negative news strategy. In previous lecture we have discussed that when you are going to deliver a negative news, when you are going to deliver a bad news, then you need to analyze the situation. First you need to keep the few things in your mind, that how to achieve your goal in communicating the negative news. कि नेगेटिव न्यूज़ को कम्युनिकेट करने के लिए वो आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दैट एनालाइजिंग द सिचुएशन. Okay, when you have decided to deliver a negative news or a bad news, then the next step is that you need to analyze the situation, that how can you deliver this negative news or negative message to your audience and to your receivers. कि आप ये negative message जो है वो किस तरह से अपने audience को जो है वो और अपने जो रेसिपेंट्स हैं उनको किस तरह से जो है वो ये मैसेज जो है वो डिलीवर करेंगे. सो एनालाइजिंग द नेगेटिव न्यूज़ स्ट्रेटजी. To successfully convey the bad news, writer must carefully consider three things. If you want to deliver a negative news or bad news, you should consider the three things. Number one is that audience, number two purpose, number three context. As a business writer in your training, you need to focus on these two basic strategies. In order to deliver a negative news or bad news, you need to focus on two basic strategies for delivering the bad news. Number one is that direct approach or direct strategy. Number two is indirect strategy. So whether to use the direct strategy or indirect strategy, it completely depends on the situation. First of all, you need to choose or you need to analyze the situation. आपने सबसे पहले जो है सिचुएशन को एनालाइज करना है. After analyzing the situation, you will choose that either you will deliver the negative news or bad news or negative message through direct strategy or through indirect strategy. So whether to use the direct or indirect strategy, it completely depends on the situation. It means that, और जब हम ये कहते हैं कि you need to analyze the situation, तो इसका मतलब ये है कि it means that you need to focus on the reaction which you expect from your receiver or your audience. कि आपने जो है अपने जो ऑडियंस का जो रिएक्शन है और जो रिसीवर है उनका जो रिएक्शन है आफ्टर डिलीवरिंग और आफ्टर गेटिंग द बैड न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है. इट मीन्स दैट द रिएक्शन विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस एंड योर गोल विच approach is best suited for your particular audience. So first of all, you will analyze the situation. After analyzing the situation, you will choose that either you will choose a direct approach or either you will choose the indirect strategy to deliver your bad news or negative message. So the first step is that before delivering a negative news is analyzing the situation, and the second thing is that how your audience will react to that news. Now the question is that when to use the direct approach or direct strategy. वो कौन सी situation है. After analyzing the situation, how will you analyze the situation? आप किस तरह situation को analyze करेंगे, and then you will decide that you are going to choose or you are going to use direct strategy. So when to use the direct strategy, आपने कब जो है वो direct strategy जो है वो use करनी है. The direct strategy actually saves time and it is preferred by some who consider it to be more professional. कि जो डायरेक्ट स्ट्रेटजी है वो नंबर वन इट सेव्स द टाइम, वो आपका टाइम बचाती है. नंबर टू दैट कि जितने भी जो प्रोफेशनल हैं या जो आम तौर पर दोज पीपल प्रिफर डायरेक्ट स्ट्रेटजी टू deliver a negative message or a bad news, who wants to be more professional and even more ethical. जो ज़्यादा professional और ethical लोग हैं, they prefer to deliver a bad news or a negative message through direct strategy. So in which situations, after analyzing the situation, or in which situations you should use or you should go for a direct strategy. If the bad news is, number one, if the bad news is not damaging, number two, if you think that it may be overlooked by the receiver. Number three is that if it is preferred by recipient, or number fourth is that when it requires firmness. In these four situations, you choose a direct strategy to deliver a negative message, to deliver a negative news. So number one is that when the bad news is not damaging. What does it mean? इसका क्या मतलब है? It means that if the bad news is unimportant, it's insignificant for your receiver,
for your audience and it does not personally affect the receiver, then you choose and you think that that bad news is not damaging for the receiver and for your audience, then you choose a direct strategy to deliver a negative news or negative message. जब आपको ये लगता है कि आपका जो रिसीवर है, ये जो आपका ऑडियंस है, ये डायरेक्टली जो है ये जो बैड न्यूज़ है, ये नेगेटिव मैसेज जो है वो उसको उतना डैमेज नहीं करेगा, उसको इतना ज़्यादा उसको डायरेक्टली डैमेज नहीं करेगा, या आपका जो ऑडियंस है उसके लिए ये न्यूज़ जो है वो somehow it's an insignificant, then you choose the direct strategy to deliver a negative message. Second step is that when the receiver may overlook the bad news, when you think that your receiver will overlook that bad news, जब आपको ये लगता है कि आपको जो ऑडियंस और रिसीवर है वो इस बैड न्यूज़ को जो है वो ओवरलुक कर देगा, देन यू गो फॉर अ डायरेक्ट स्ट्रेटजी. तो आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी चूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज इन सर्विसेज, the new policy requirement या legal announcements, so these critical messages may require boldness to ensure attention, so then you choose direct strategy to deliver all these messages, and then you go for a direct strategy to deliver a bad news or a negative message. For example, if you want to make a legal announcements, if you want to make a changes in the services, and if the new policies required, then you choose to deliver all these news, you go for a direct strategy. Third thing is that when you think that your organization or individual prefer directness or expect directness from you, कि जब कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडिविजुअल है जिसको आपने जिसको आपने जो है वो बैड न्यूज़ या नेगेटिव मैसेज डिलीवर करना है, जब आपको ये लगता है कि योर ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट अ डायरेक्टनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस फ्रॉम यू, कि वो आपसे डायरेक्टनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, यू गो फॉर डायरेक्ट स्ट्रेटजी. देन यू गो फॉर डायरेक्ट स्ट्रेटजी. आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो एक्सपेक्ट ऑल द इंटरनल मैसेजेस. इट मीन्स दैट कि सम कंपनीज, सम इंडिविजुअल एक्सपेक्ट ऑल इंटरनल मैसेजेस एंड अनाउंसमेंट. इवन बैड न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ शुड बी डिलीवर्ड स्ट्रेट अवे एंड प्रेजेंटेड विदाउट फेल्स. यानी कि जितनी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो बैड न्यूज़ ही क्यों ना हो, दे शुड बी डिलीवर टू देम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो दे शुड बी डिलीवर टू देम डायरेक्टली, एंड दे एक्सपेक्ट डायरेक्टनेस फ्रॉम यू. जब वो आपसे डायरेक्टनेस की तवक्को करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की तवक्को करते हैं, और दे डोंट वांट दैट यू कन्वे अ नेगेटिव न्यूज़ और बैड मैसेज इन अ शुगर कोटेड वे. जब वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसको शुगर कोटेड वे में उन तक पहुँचाएँ या प्रेजेंट करें, एंड दे एक्सपेक्ट यू दैट यू present all the bad news or all the announcements or including negative message without any frills, then you choose a direct strategy. तब भी आप जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी चूज़ करते हैं. द फोर्थ थिंग इज़ दैट व्हेन फर्मनेस इज़ नेसेसरी. व्हेन यू थिंक दैट, जब आपको ये लगता है कि जो फर्मनेस है, दैट मैसेजेस दैट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, देन यू गो फॉर डायरेक्ट स्ट्रेटजी. जब आपको ये लगता है कि जो मैसेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए डिटर्मिनेशन को, फर्मनेस को और स्ट्रेंथ को, देन यू शुड नॉट यूज़ डिलेइंग टेक्निक्स. You should choose a direct strategy to deliver the bad news or a negative message. Now the next thing is that when to use the indirect strategy. अब जो अगली बात है वो ये कि when to choose a indirect strategy. आपने इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो कब चूज़ करनी है. इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी आपने उस वक्त यूज़ करनी है, और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है आपने कब सिचुएशन को एनालाइज करना है. सबसे पहले तो अपने यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन, देन यू विल डिसाइड कि इधर यू विल गो फॉर अ डायरेक्ट स्ट्रेटजी और यू विल गो फॉर अ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी. और उसके लिए जो है आपने 3 चीज़ों को जहन में रखना है, आपके ऑडियंस, आपका पर्पस और आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है. और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपने जो है उसके बाद कम्प्लीटली जो है आपने ये देखना है कि आपका जो ऑडियंस है, हाउ दे विल रिएक्ट टू दैट बैड न्यूज़ और इनडायरेक्ट नेगेटिव मैसेज. उसके बाद वो कौन सी सिचुएशंस है इन विच यू यूज़ और द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी साउंड्स गुड, और यू गो फॉर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू डिलीवर अ नेगेटिव मैसेज और अ बैड न्यूज़. वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं बैड न्यूज़ को डिलीवर करने के लिए. द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी डज़ नॉट एक्चुअली, उसका पर्पज़ ये होता है कि जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है, इट डज़ नॉट रिवील द बैड न्यूज़ इमीडिएटली. कि जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है उसमें ये होता है कि फर्स्ट यू मेकअप योर ऑडियंस माइंड, यू मेकअप योर रिसीवर माइंड. आप पहले जो है वो यू गिव द रीज़न
एंड देन यू डिलीवर अ बैड न्यूज़। कि आप सबसे पहले जो है जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है वो बैड न्यूज़ को इमीडिएटली जो है वो डिलीवर नहीं करती, इमीडिएटली रिवील नहीं करती, बल्कि इसके लिए आप जो है यू डिलीवर द बैड न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज ग्रेजुअली। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है वो बैड न्यूज़ को या नेगेटिव मैसेज को डिलीवर करते हैं। और इस स्ट्रेटजी में ये होता है कि दिस स्ट्रेटजी enables you to keep the reader's attention until you have been able to explain the reason for the bad news। आप पहले जो है आप उसका माइंड बिल्डअप करते हैं, आप सिचुएशन बिल्डअप करते हैं, यू मेकअप द माइंड ऑफ द रिसीवर और योर रीडर और योर ऑडियंस टू ऑडियंस, देन यू डिलीवर और देन यू गिव देम द रीज़न फॉर द बैड न्यूज़। तब आप उनको रीज़न देते हैं उस बैड न्यूज़ की, एंड देन यू डिलीवर द बैड न्यूज़। सो इट मीन्स दैट यू डिलीवर द नेगेटिव मैसेज और बैड न्यूज़ ग्रेजुअली, कि आप एट वंस जो है इमीडिएटली जो है वो बैड न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज डिलीवर नहीं करते, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इसको डिलीवर करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो है इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड। तो आपके रीडर के लिए जो है इट बिकम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट द बैड न्यूज़। सो बैड न्यूज़ में बी ईजियर टू एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड ग्रेजुअली। तो आपका जो ऑडियंस होता है वो उसको आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड भी कर लेता है, उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि आप उसको सबसे पहले यू मेकअप योर रिसीवर और योर ऑडियंस माइंड बाय टेलिंग देम द रीज़न। आप सबसे पहले उनका जहन बनाते हैं, उनको रीज़न बताते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस बैड न्यूज़, इस बैड न्यूज़ की क्या रीज़न है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि दे एक्सेप्ट इट, दे अंडरस्टैंड इट, वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। सो इट मीन्स दैट कि बैड न्यूज़ मे बी ईजी टू एक्सेप्ट व्हेन दे आर डिलीवर्ड ग्रेजुअली। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हेन टू यूज़ द डायरेक्ट अप्रोच और डायरेक्ट स्ट्रेटजी, कि आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो कब यूज़ करते हैं। नंबर 1, व्हेन इट इज़ पर्सनली, व्हेन यू फील दैट इट्स पर्सनली अपसेटिंग। Number 2, when you feel that it may provoke the hostile reaction to your from your audience, or your audience may react violently when you will deliver that bad news or negative message to them. Thirdly, could threaten your customer relationship. Number 4, it is unexpected. ये 4 सिचुएशंस हैं जहाँ पर जो है आप जब इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, अगर आपको ये लगे कि दिस बैड न्यूज़ कैन पर्सनली अपसेट, देन यू गो फॉर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। When you feel that it may provoke hostile reaction, then you go for indirect strategy. And when you feel that it could threaten your customer relationship, it can damage your relationship with the customer, then you go for indirect strategy. And when it is unexpected. So what is personally upsetting? It means that if the negative news involves the receivers personally, अगर नेगेटिव न्यूज़ में रिसीवर जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व हो, देन इट इज़ बेटर टू डिलीवर अ नेगेटिव न्यूज़ और बैड न्यूज़ थ्रू इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। देन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी साउंड्स गुड। जब आपको ये लगे कि आपका रिसीवर जो है पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है और वो बैड न्यूज़ पर्सनली उसको इफेक्ट करेगी, देन यू चूज़ अ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू डिलीवर दैट बैड न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज। मिसाल के तौर पर ले ऑफ नोटिस, डाउन साइजिंग, या फिर जो है टेलिंग, या जो है इनमें जो है यू गो फॉर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेल एन एम्प्लॉय दैट ही और शी नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, या नो लॉन्गर रिटेन देयर जॉब, कि जो है मज़ीद अब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम नहीं कर रहे, या उनको जॉब से निकाला जा रहा है, या जब आप डाउन साइजिंग करते हैं या फिर ले ऑफ नोटिस देते हैं, तो इसका मतलब है कि रिसीवर जो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है, देन इट इज़ बेटर दैट यू चूज़ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू डिलीवर दैट बैड न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़। सेकेंडली, व्हेन अ कंपनी हैज़ मेड अ मिस्टेक, जब कंपनी के बिहाफ पे कोई गलती हो जाए कि या कंपनी की वजह से जो कस्टमर हैं उनको किसी इनकन्वीनियंस का सामना हो या कोई डिसएडवांटेज हो, देन यू ऑल्सो चूज़ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू डिलीवर अ नेगेटिव न्यूज़ और बैड मैसेज। Second is that when you think that it will provoke reaction, when your message will irritate or infuriate your receiver or your recipient, or when you think that your receiver will get angry after getting that bad news, जब आपको ये लगता है कि आपको जो रिसीवर है वो गुस्से में आ जाएगा, इन्फ्यूरेट हो जाएगा, इरिटेट होगा इस बैड न्यूज़ को सुनने के बाद, देन इट इज़ बेटर दैट यू चूज़, और देन यू शुड चूज़ इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू डिलीवर दैट बैड न्यूज़। क्योंकि उसमें होता ये है कि जब आप इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी चूज़ करते हैं तो इट बिगेन्स विद अ बफर, तो ये बफर से स्टार्ट होती है। इसमें फर्स्ट यू गिव देम द रीज़न, आप जो है उसको रीज़न बताते हैं, एंड व्हेन यू टेल द रीज़न देन यू मेक अप योर रिसीवर माइंड टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द बैड न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज। तो जब आप जो उसको पहले रीज़न बताएंगे, उसको
ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ये बैड न्यूज़ देंगे, या तो आप बफर से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, और ये रीजनिंग जो है दिस रीजनिंग विल श्योरली हेल्प योर रिसीवर टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट दैट नेगेटिव मैसेज। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि ब्लंट अनाउंसमेंट्स जो होती हैं दे मे मेक रिसीवर स्टॉप रीडिंग। थर्ड थिंग इज़ दैट थ्रेटन द कस्टमर रिलेशनशिप। व्हेन यू फील दैट कि योर बैड न्यूज़ और योर नेगेटिव मैसेज कैन थ्रेटन और कैन डैमेज योर कस्टमर रिलेशनशिप, आपके कस्टमर रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है, और इफ़ दिस नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज में डैमेज योर कस्टमर रिलेशनशिप देन यू गो फॉर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो आप जो है वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी हेल्प्स यू टू रिटेन और टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप। And the fourth thing is that when your organization or your receiver the fourth thing is that when it is unexpected, when your receiver or when you thinks that this is an unexpected news for them, then you who are totally surprised, and when the readers who are totally surprised by the bad news, then they can react more negatively. Then you choose indirect strategy to deliver the negative news. So these are the 4 situations, and after analyzing the situation, after analyzing or after focusing the after analyzing the situation and after focusing the reaction of your audience and your receiver, that how they will react to that negative news, you choose that either you will deliver that negative message through a direct approach or indirect strategy. अच्छा जी, कीपिंग द इंडायरेक्ट स्ट्रेटजी एथिकल्स। आपने इंडायरेक्ट स्ट्रेटजी के कुछ एथिक्स होते हैं जिनको आपने जो है वो जहन में रखना होता है। वो आमतौर पर 4 पार्ट होते हैं इंडायरेक्ट स्ट्रेटजी के जो बैड न्यूज़ डिलीवर करने में। नंबर सबसे 1 इज़ बफर, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 बैड न्यूज़, और नंबर 4 इज़ क्लोजिंग। ये हम अभी जो है वो जूम की क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि इन 4 स्टेप्स पे जाकर जब आपने जो है व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू डिलीवर योर नेगेटिव मैसेज थ्रू इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, देन दिस इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी शुड बी इथिकल। उसमें भी कुछ एथिक्स हैं। वो एथिक्स क्या हैं कि आपने इन 4 स्टेप्स को जो है फॉलो करना है। आपने पहले बफर के साथ स्टार्ट करना है, फिर रीजनिंग देनी है, फिर बैड न्यूज़ देनी है, और फिर लास्ट पे क्लोजिंग करनी है। अब बफर में क्या है कि यू ओपन योर न्यूज़ विद अ न्यूट्रल बट मीनिंगफुल स्टेटमेंट दैट डज नॉट मेंशन द बैड न्यूज़। कि आपने जो है पहले एक बैकग्राउंड तैयार करना है, आपने न्यूट्रल और मीनिंगफुल स्टेटमेंट देनी है, लेकिन उसमें आपने बैड न्यूज़ को मेंशन नहीं करना। ये 4 स्टेप क्या है कि यू आर गोइंग टू मेक अप द माइंड ऑफ द रिसीवर और द ऑडियंस that they will be easily that it will be easy for them to accept or understand your bad news or your negative message. जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि if the bad news or negative message are delivered gradually, then they will be then the audience can accept it easily. उसके बाद आप रीज़न देंगे। रीज़न में यू नीड टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द बैड न्यूज़ बिफोर डिस्क्लोजिंग इट, और उसके बाद यू विल रिवील द बैड न्यूज़ विदाउट एम्फसाइजिंग इट, और प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव और कॉम्प्रोमाइज़। आप उसमें कोई अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। और लास्ट पे जब आप क्लोजिंग करेंगे तो एंड विद अ पर्सनलाइज्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, प्लेजेंट स्टेटमेंट और पॉजिटिव नोट्स, यानी कि वो जो बैड न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा जो है वो कम हो जाए। तो दीज आर द 4 स्टेप्स, दीज आर द 4 एथिक्स, दीज आर द विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिलीवरिंग द बैड न्यूज़ थ्रू इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। ठीक है जी, थैंक यू।